Uh, let's understand from y'all. I want y'all to participate with me because I will take 30 minutes. I said, right? Why health insurance? This is my question. I want to hear from answer from you. Why health insurance is important? Everybody know what is health insurance, right? मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है. But why it is important? Raise your hands and you can speak out. For safety. For safety of from what? For like medical benefits and Medical benefits. Why you require health insurance? Because the future is uncertain and we don't know what will happen, and like given the environment we are staying in and the food we are eating, anything can happen at all. Any uncertainty of causing any disease, right? That is one. Okay? Now what will happen if that disease is caused? That is important here. What will happen if certain disease has been caused to you? Hospitalization. So what is that one cannot afford in the hospitalization? Right? Corona, you know how many people were being diagnosed with corona in India? Out of 140 crores, कितने लोगों को कोरोना हुआ रहेगा? डायग्नोसाइज में पूछा मैंने. हुआ तो सबको है. We all have gone through that phase. Yes, no. कोई नहीं बचा होगा, सबको आके गया रहेगा. हल्का फुल्का सिम्टम्स कोरोना के सबको आके गया रहेगा. But I think hardly some people will believe कि मेरे को तो आया ही नहीं था. सबको आया रहेगा, भले उन्होंने डायग्नोसिस के लिए गए नहीं होंगे. ठीक है? So the need of the hour is why you should understand the health insurance is important. You said rising number of diseases that is there. Corona is a new one. बीच में अभी हम लोगों ने और एक कौन सा पढ़ा था, अभी चाइना से और एक आ रहा है, कोई वेरिएंट आया था कोरोना के अंदर ही था. Which was that? New variant had also come into the Kerala, na? Recent days. JN1. So number of variant will come. If you see the earlier days which were there, na, so media was not there. Media was not there, and there also that time also lot of diseases were there. Today the awareness and the media awareness is such that we come to know about lot of such diseases. So number one reason, rise in increase of number of diseases. That is the reason we should have health insurance. Number two, that is increase in the costing of hospitalization or healthcare. जो नॉर्मल अगर आप किसी को डेंगू होता था ना पहले, डेंगू यू नो एवरीवन, किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, राइट? तो मॉस्किटो जब भी डेंगू किसी को दे देता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है और कम से कम 10 दिन एडमिट होता है. जब 10 दिन एडमिट होता है तो व्हाट इज दैट द कॉस्ट इन मुंबई में क्या कॉस्टिंग होती होगी एडमिट होने का? लाख रुपीस. अगर आप 2 साल पहले देखते हैं तो ये 60,000 में हो जाता था. आज वो 1 लाख रुपया है. व्हाट इज द डिफरेंस? जो फैमिली के पास 60,000 है 2 साल पहले वो कर सकता था, आज वो अगर वो 1 लाख रुपया कहाँ से 40,000 का डिफरेंस आ गया. मतलब द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर वेयर विच इज सेइंग दैट यू शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? It is impacting the cost of medicine, the doctor cost, hospitalization cost. This is a very important reason. And very important, one more thing is, we as an, अगर हम सब metropolitans में रहते हैं, Mumbai is a metropolitan, our habits are such that we should surely have it, because हमारे खाने का टाइमिंग क्या होता है? सुबह उठ के हम कितना वॉक करते हैं? How many times? What is the time we sit on a chair and work? Think. I'm just giving you thought. You just think about it. हम लोग कितना टाइम पे क्या हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं? इतनी अच्छी थाली दिखाई थी. I think the last balanced diet was being shown in the mutual fund वाला session. So much beautiful. कितने बार ऐसे स्लाइड ऐसे घर पे बैठ के खाया हमने? या हमारे टिफिन में हमने इतनी सारी चीजें एक साथ खाई. We don't get time. That is the biggest issue. The timing of the food, what we have, junk foods हम खाते हैं, youngsters mostly, right? Burger, pizza and all. ठीक है? Then no perfect habit of having exercise.
राइट हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स, आजकल हम लोग पेडियोमीटर यूज कर रहे हैं कि कितना कदम मैंने वॉक किया, पहले होता था क्या? बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग, द लाइफस्टाइल इज चेंजिंग एंड दैट्स द रीजन वी शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको इस स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गो थ्रू दिस। Important है slide? Stress. In my school days, I never thought about when I will become doctor, और उस समय मजा आता था स्कूल जाने का भी, एक बस हम लोग 4 लोग मिलके जाते थे and I used to enjoy that journey of walking 1.5 kilometer to the school. आज सबके लिए बस आती है, even my kids have a bus, and तो फिजिकल वो जो होता था ना, फिजिकल वॉकिंग हो जाती थी, स्ट्रेस बस्टर्स होते थे, रास्ते में भी एक मंदिर आती थी, मंदिर पे हम रुकते थे, ये सब चीजें अब खत्म हो गई। वो बस आती है, बस में बच्चे को बिठाते हैं, बस पहुंच के सीधा गेट पे जाती है, गेट पे से फिर वो जाके बैठता है, बैठा 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 फिर टिफिन खाता है, फिर बाहर आता है, एंड दिस इज द लाइफस्टाइल। व्हाट हैपेंस? द फिजिकल वर्क इज लोड डाउन। एंड अर्लियर हम लोग जब स्कूल से घर जाते थे तो व्हाट वाज देयर, घर पे मस्त खाना वाना खा के फिर 1-2 घंटा खेलने। आजकल के बच्चे स्कूल के बाद जाके सो जाते हैं। थिंक अबाउट, आप घर में देख रहे होगे ये चीजें, एंड दैट्स द रीजन नंबर ऑफ डिजीजेस आर इंक्रीजिंग। एंड आजकल के बच्चों को स्ट्रेस है, आजकल के बच्चों को स्ट्रेस है, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे ट्यूशन भी जाना है, मुझे स्पोर्ट्स क्लासेस भी जाना है, मुझे हॉबी क्लासेस भी जाना है। पेरेंट्स हैव बोलते हैं ना बहुत सारा बोझा देके रखा है, एंड दैट्स वेयर the journey starts for a small kid, and 100% जब वो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, लेकिन बाद में जाके उसकी हेल्थ, immunity power get reduced, and 100% he will suffer some disease in future. That's where the immunity of the senior citizens today are much better than the youngsters sitting here. आज जिन्होंने 60-65 क्रॉस कर लिया है ना, उनका immunity power is much better. They are able to plan the ladder, मतलब होता है ना घर की सीढ़ियों पे चढ़ के वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। यंग बच्चे को बोल दो नहीं मैं लिफ्ट से जाऊंगा, ठीक है? तो दैट्स वेयर आई एम कमिंग फॉर, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप लोग अभी यंग हैं, यू डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, यू शुड गेट इट, अदरवाइज वंस यू आर बीन ट्रैप्ड विद सर्टेन डिजीज यू विल नॉट गेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज फॉर व्हाट टाइम, यू नो? इंश्योरेंस के जो लोग आते हैं ना, आपके अच्छे वक्त पे ही आते हैं टू गिव यू इंश्योरेंस, एंड दे कम वंस अगेन एट द बैड टाइम्स टू सपोर्ट यू एट दैट टाइम ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो अगर आप बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस वाला आके आपको सपोर्ट करता है, चलिए आप एडमिट हैं तो आई विल हेल्प यू टू गेट दैट बिल गेट क्लियर। अंडरस्टूड? तो इट इज, जब हम फाइनेंशियल पिरामिड की बात करते हैं ना, म्यूचुअल फंड हमने देखा अभी, जो बॉटम का जो पिरामिड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, डिफेंसिव प्लानिंग होती है। क्या होती है? डिफेंसिव, मतलब डिफेंस। अगर इमरजेंसी फंड कहां से आएगा? आज मैं बीमार पड़ गया, टुडे आई एम द ब्रेड विनर, इफ आई एम बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, आई एम बीन देयर फॉर वन ईयर, 1 महीने के लिए मैं एडमिट हो गया एक्सीडेंट की वजह से, मेरी अर्निंग का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली? इमरजेंसी फंड कहां से आएगा? दिस इज द थॉट यू नीड टू थिंक व्हेन इंश्योरेंस कम टू द पिक्चर। तो बेस जो होता है ना पिरामिड का, इट इज डिफेंसिव प्लानिंग, एंड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में एंड लाइफ इंश्योरेंस, बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो अप टू द पिरामिड। तो कभी कोई फाइनेंशियल पिरामिड अगर आप देखोगे तो डिफेंसिव प्लानिंग से शुरू होगी। डिफेंसिव में नंबर 1 आएगा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आएगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड करो, उसके बाद, बिकॉज अगर कोई ये तीनों में से लेके डायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे डाल दिए, यू कैन नॉट क्लाइम अप द पिरामिड इफ द डिफेंसिव इज नॉट सेट, यू विल फॉल डाउन, योर फैमिली विल फॉल डाउन। अंडरस्टूड? यस, नो? आई वांट दैट yes from here. Yes. Let's talk about something more about the data points.
इन 1920 और 2020-21 में क्या फर्क है? अगर आप देखोगे ना, पहले के टाइम पे व्हाट वर द डिजीजेस? डायरिया वाज द हाईएस्ट डिजीज व्हिच वाज देयर, लोअर रिस्पिरेटरी रेट वाज देयर, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे, टीबी वाज वन ऑफ द प्राइम डिजीज दैट टाइम, मीजल्स वगैरह थे. इफ यू सी द नाउ द ट्रेंड्स व्हिच इज देयर इन 2021 के बाद, इस्मिक हार्ट डिजीज, हेल्थ डिजीज मतलब इट इज मोर ऑफ सीरियस, स्ट्रोक, हार्ट, ये सब इस्मिक है, मतलब दे आर वेरी क्रिटिकल, क्रोनिकल, ब्लड वेसल से रिलेटेड बीमारियां, इज कॉल्ड एज इस्मिक. एंड सीओपीडी अगेन इट्स अ कॉरोनरी हार्ट अटैक. डायरिया नीचे हो गया, लोअर रिस्पिरेटरी रेट वहीं हो गया, स्ट्रोक भी आ गया है. तो क्रिटिकल बीमारियां बढ़ गई. और ऊपर चेंज देख रहे हो क्या, डिजीज के पैटर्न में चेंज देख रहे हो आप? आजकल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हम लोग कभी नहीं सोचा था, कोरोना के बाद वी स्टार्टेड मेजरिंग व्हाट इज माय ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, वो मशीनें आने लगी थी, राइट? तो ये सब बीमारियों में चेंजेस आए, एंड दैट्स वेयर वी वर मोर इफेक्टेड बाय दैट. ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द, ऑफ कोर्स द नेचर इज द वन ऑफ इट, एंड नेचर को जो खराब कर रहा है, वी आर ओनली द पर्सन. ठीक है. Now what is that? What a customer looks for. Now आप सब अभी हमारे लिए कस्टमर के जैसे देख रहे हो. तो what is the customer is looking at? What is the current trend? Today the medical inflation is 14%. Last person you can read this. आपको दिख रहा होगा ये slide. What is the second point I am saying? आगे आ जाओ ना. दिख रहा है ये slide? Okay, ठीक है. So medical inflation has gone up to 14% in India. If you see the next one, diagnostic cost has gone up by 40% over the last 3 years. Diagnostic, normal जो testing के blood test हो, pathological test हो, right? 40% increase, and that's what I was talking about. The inflation is impacting a larger number. Medical consumable cost, दवा का cost has been almost gone up by 50% over the last 3 years. And out of the pocket expenditure in healthcare stands to 47.1%. Now what is this out of the pocket expenditure? In India, if you see, still the penetration of health insurance is only 8%. What is it? 8%. Still 92% doesn't have a health insurance. Now in health insurance also, there are two categories. One is the company given health insurance, and one is the stand. Suppose you are working with the government, so government also give you that, central government and state government provide you health insurance, and today government scheme already is running, that is Ayushman Bharat, you must be knowing. In that 8% is there. Actually 4% निकाल देना चाहिए. Only 4% individuals in India are having individual health insurance today. वो 4% जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो उसमें वो गवर्नमेंट वाला, कॉर्पोरेट वाला है, वो सब आ गए. वो आज के डेट में 4% लोगों के पास ही है. स्टिल देयर आर मेनी पीपल दे थिंक मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो वरदान लेके आया, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द डिजीज. ठीक है. बट जब होता है तो फिर यू कांट कंट्रोल इट बिकॉज इट्स एन अनसर्टेन. नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन. A claim value worth rupees 25 lakhs now will get double in next 5 years. This is the impact, inflation impact. तो आज अगर 25 लाख का क्लेम आ रहा है ना कोई बीमारी का, 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 50 लाख. आजकल 25 लाख में लोगों की हालत खराब हो जाती है अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. थिंक अबाउट 5 इयर्स के बाद 50 लाख कहां से लाएंगे? Larger claim can burn financial savings. अगर आपके पास, आपने बच्चों, पेरेंट्स क्या करते हैं? They save money for their kids' education, marriage, and we also save money for our bad times. पूरा का पूरा पैसा अगर एक कोई critical illness फैमिली में हो गया ना, वो पैसा वहां चला जाता है, and entire savings get gone. My family requires higher cover to remain protected. इससे हमें inference क्या बनता है? We should have a higher cover. Because at your age, for getting a 1 crore, the requirement is only 15,000 to 12,000 rupees. At my age, above 40,
1% cost will be around 26,000 rupees for 1 crore. See the difference. Younger you enter, you enjoy more benefits of health insurance because you don't have currently any critical illness. We get normally people queries, अरे मेरे को ना सर डायबिटीज है, can I get an insurance? सर मुझे स्ट्रोक आके गया है, can I get an insurance? मुझे हार्ट अटैक आया था, now I am well, can I get an insurance? सर मुझे कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है, can I get an insurance? The answer is no. Once you are suffering from some disease, you will not get disease. Once you are suffering from some of the critical illnesses, you will not. The health insurance company will say no, or they will charge you extra premium. If yes, they will charge you an extra premium to it. So make it very clear. What customer needs? A product which covers higher coverage, a cover that does not run fast, a cover that enables to avail the best of service, and product that pocket friendly. तो आजकल जो इंश्योरेंस कंपनी में काम हो रहा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिक से मैं बात करूं, वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स नीड एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो अगर मीडियम पर कस्टमर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, HNI है, तो हर एक की कैटेगरी के हिसाब से वी हैव मेड द प्रोडक्ट्स, राइट. एंड एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोडक्ट चालू किया है, दैट इज आयुष्मान भारत. बट उसके लिए भी राशन कार्ड होना जरूरी है, और मुंबई में बहुत सारे लोग के पास राशन कार्ड नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, द की डिसीजंस वेरिएबल. आज के डेट में जो की डिसीजंस एक फैमिली ढूंढ रही है, बेस्ट हेल्थ केयर फॉर फैमिली, मॉडर्न फैसिलिटी होनी चाहिए, इट शुड बी कवर्ड. बिकॉज आजकल एक नॉर्मल सर्जरी भी अगर आप देखो तो इट्स अ रोबोटिक सर्जरी. तो नो नीड ऑफ मैनुअल डूइंग अ कटिंग ऑफ सो मच, इतना बड़ा कट करके फिर एक सर्जरी होती है. आजकल सब रॉबोट करते हैं, तो आपके मेडिक्लेम पॉलिसी में इट शुड गेट कवर्ड. तो वो सब चीजें भी आजकल देख रहे हैं लोग. देयर शुड बी नो लिमिट टू द एक्सपेंडिचर. सर 5 लाख का ही लिमिट है, 5 लाख से ऊपर आया तो यू नीड टू पे. तो कस्टमर आर आल्सो लुकिंग दैट कि देयर शुड बी सम ऑप्शंस वेयर आई शुड गेट अ हायर कवर, लो प्रीमियम, एंड द कवरेज शुड बी ऑफ 5 लाख की जगह पे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का सम एश्योर्ड होना चाहिए, सो दैट कोई भी बीमारी हो, कितना भी पैसा लग रहा हो, आई शुड गेट rid. That's the requirement in the market today. तो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट टुडे ऑफ द पीपल. कि आजकल जो भी इंडिया में कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, देयर शुड बी अ प्रोडक्ट व्हिच हैव द इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर पे भी मैं जाके ट्रीटमेंट कर सकता हूं, ऐसा भी प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट. नाउ सम फैक्ट्स, दिस इज जस्ट फॉर थिंकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. आई थिंक फैक्ट नंबर 1, तो मेरा जो स्टेटमेंट था कि 4%, it is actually 5% now here. Just 5% of Indians have their own cover. Individual insurance अगर मैं पूछूं किसी से, तो यहाँ बैठे हुए आप अपने पेरेंट्स में पूछना, अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से 5 लोग बोलेंगे हाँ मेरा इंडिविजुअल है, हाँ मेरे कंपनी का होगा, दैट इज डिफरेंट. और इफ आई एम ए स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो अलग होगा. बट इंडिविजुअल 5%. इंडिया में अभी भी 5% ही लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस. मैंने खुद ने लिया हुआ, कंपनी का नहीं. आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स इन इंडिया हायर, मींस अगर 100 रुपए का बिल बनता है हॉस्पिटल के अंदर, 60 रुपया आज भी हमारी जेब से जाता है. दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ. जिसके पास मेडिक्लेम नहीं हो तो 100% ही बन रहा होगा, राइट. तो आज 100 रुपए की जगह पे 60 रुपया जेब से जाता है, 40 रुपया अगर मेडिक्लेम से जा रहा होगा. दैट्स द ट्रूथ अबाउट होल इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. तो both the value and the number of spends. अच्छा, there is a thought, very good thought कि 50 के ऊपर वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसा है? What do you think? They claim more because they are higher age. They claim more. The answer is no. You have seen people at 24, 23 got heart attack and died. Yes. Yeah, and already I have told you the journey of a young boy to adults nowadays. The immunity power is very low. They are more prone to diseases because of that lifestyle and the habit, you can say, right?
and it is been observed the youngsters, the people who are in the range of 29, 30 to you can say till 45, they are claiming more health insurance claims than the people who are above 50. And the reason is younger population को क्यों ज़्यादा claim आ रहा है? The answer is here. What is that? Lifestyle, stress, and accidents. Youngsters have more accidents. Do you know how many accidents happen in a 1 minute in India? 1 मिनट में कितने एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में पता है आपको? गूगल करो ना, चलो मोबाइल देता हूँ मैं, चलो गूगल कर लो, लेट मी हियर इट, अभी अब सब कुछ फिर गया, चलो जल्दी फटाफट आंसर मी। इन 1 minute how many accident happens in India? फास्ट गूगल करो। इसने फोन साइलेंट पे रखा था। In 1 minute, how many accidents happen in India? I am talking about accidents. Sir. Don't write road accidents. Write accident. What is the number? 1 lakh? 1,000? One accident in India. यही आ रहा है? Those are road accidents, guys. One out of Death 183 is a road 1 accident. में से एक डेथ होती है, वो है वो। All can't be done by that. Well, it's not One your- death every 3 minutes due to road accident. वैसा है. हाँ, तो that is death. तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। It is 1,26,067. आप गूगल करना बैठ के, मैं बता रहा हूँ। तो it is 1,26,067 accidents happen in India. Out of that, around 35% people die and rest are alive. Now, there is again, one is the hospitalization need. Think about partial disability. Think about where your legs are not there. Think about your one eye is not there after accident and you have to live. What about that situation? Think about it. Sorry, I am talking little bit of insurance is all about talking about such things here. बोलोगे यार मुझे हम लोग को young age पे ये सब बात क्यों करवा रहे हैं? But you need to think. Insurance is all a bit of uncertainties and this topic come into the picture. तो जब मैं कह रहा हूँ ना कि 30 लोग मर जाते हैं 100 में से 70 लोग जीते हैं, वो 70 लोग का सोचो, मर गए तो चलो ठीक है, अगर कम प्लान है तो they will get the amount and the family can use that. But वो मरे नहीं तो फिर क्या? Think about the hospitalization cost. Think about their rehabilitation cost. Think about the cost of the earning if they are bringing some earning to the family. What about that earning? So insurance, health insurance comes a picture over here also. So that is already we have discussed this. So government already I said the government already Ayushman Bharat scheme is there for you all. Now we are going to talk about some products. This is very important slide because I am going to spend around 15 minutes on this. मेरा कितने time हो गए? I have got 10 minutes now. Okay. Now there are 4 different products you can see. In health insurance perspective अगर हम सोचते हैं तो 4 products दिखते हैं. Number 1 is the indemnity policy. Indemnity का मतलब क्या होता है? Indemnity word means क्षति पूर्ति. What is that? क्षति. हिंदी में क्षति बोलते हैं ना? जितना नुकसान होगा उतने का ही भरपाई होगा. Your motor insurance, your fire insurance, health insurance, all come into the base plan of it. Indemnity policy. Understood? तो मान लीजिए आपने पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 5 लाख की. कितने की? I will make a quiz है, जो आंसर करेगा उसको मेरे तरफ से सरप्राइज गिफ्ट है. You need to answer the right question. ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वालों को मैं ज्यादा सवाल पूछूंगा. इसका मतलब ये नहीं कि आगे वालों को नहीं पूछूंगा. तो एक फैमिली है, you need to answer this. एक फैमिली है, 5 लाख का उनके पास मेडिक्लेम है. कितना है? फैमिली में कितने लोग हैं? हस्बैंड है, वाइफ है और एक किड है. ठीक है?
हस्बैंड को कोरोना हो गया, बैड ना, ठीक है। नाउ द बिल वाज ही गॉट एडमिटेड और वो ठीक भी हो गया। द बिल फॉर दैट कोरोना वाज 80,000 rupees. What do you think? The insurance is of 5 lakh and the bill is of 80,000. What will the insurance company give the claim of? 80,000 or total 5 lakhs? Why? He had paid the money for 5 lakhs, na? जोर से बोलो यार। एक्सपेंडिचर नहीं किया तो फिर कंपनी क्यों देगी? कंपनी क्यों देगी? But though he had paid 5 lakhs premium for 5 lakhs, indemnity says we will pay you only the loss which is happening or the claim amount which is there. ठीक है? This is health insurance. Understood? This is example of an indemnity policy. Similarly, in motor, one more example for you all. There is a car. सब लोग का कौन सा कार है आप इमेजिन कर लो। आप लोगों ने खुद ने अपनी कार ली है। मल्टीपल केमोथेरेपी की साइकिल्स होते हैं, सो ड्यूरेशन ऑफ 3 वीक्स या फिर ऐसा मंथली, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस उसके हिसाब से नंबर ऑफ साइकिल्स डिसाइड करते हैं, एंड एक एवरी उतने टाइम के लिए उनको वो साइकिल होता है, एंड उसके बाद वीकनेस होता है तो पेशेंट फॉर 1 to 2 weeks, जिसके लिए दे कैन नॉट गेट अप ऑन देयर ओन, दे नीड हेल्प कंटिन्यूअसली फॉर एवरी। Perfect. So there is one person required already. I told you. There is they are very key. उनकी जो immunity होती है ना वो zero हो जाती है, because जब chemo देते हैं तो the chemo is for the bad cells to get killed, right? But it also kills the good cells, and therefore the immunity of that person gets reduced, and therefore there is a continuous cleanliness should be there in the house. AC is continuous required because the heat of that chemo is very high. Cleaning of bed sheets वगैरह बहुत, मतलब there is a rehabilitation cost जो होता है ना कैंसर पेशेंट का, it is much higher than the hospital cost in some time. जो हॉस्पिटल में हार्डली वो 1 दिन 2 दिन रहेगा, केमो देके घर आ जाता है। It is not केमो कैंसर में एडमिट नहीं होता कोई, एडमिट वो सब आपका इन पेशेंट कवर करेगा, but there are certain cost and that is one thing. उसके अलावा the person if suppose is a earning person है तो जॉब जा पाएगा, to go to in his routine of regular routine पे आने के लिए he will take around 6 months to 1 year, and that loss can be covered in the product like CritiShield. Now what is CritiShield or a family shield? मैंने बोला एक्सीडेंट के लिए, this gives a lump sum amount. This gives a lump sum amount. Suppose anybody is diagnosed with this critical illness, now here on diagnosis the company will give him the lump sum amount, 25 लाख 40 लाख जो भी अमाउंट आप ले रहे हो वो अमाउंट कस्टमर के घर पे आ जाएगा। कस्टमर कैन यूज दैट मनी फॉर द rehabilitation or that 6 month period of getting recovery or various expenses you can use that money. So that is also a very good plan. Under critical illness we can cover it for the critical illness. Understood? So these are the categories of health insurance, and any questions you have? I'm not gone into the deep of it because I think you all are very smart and you can read it. आजकल health पे तो बहुत सारे articles हैं and you must be daily hearing some news about health. So go and read it. If you read, you will learn more. And family plan, financial planning करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे दिमाग में आया था family planning। वही मैं देखा 2 लोग के एक्सप्रेशन चेंज हुए। चलो, any questions on this? Let's go with the question Q&A. No questions? Yeah. Top up policy can be applied at any time or जब भी दिया कभी करना पड़ता है? Top up policy देखो, वो fantastic question, एक बार ताली बजाएगा। We have asked something. I want people to ask question and participate. I like this question. Okay. Now, top up policy, I said it's a top up. So you should have the base plan, then you can take, that is one. Or if you don't have the base plan, then also you can take a top up plan. But the initial expenses, like 5 lakh rupees was the initial bill, you need to take care. So there is a deductible amount which you need to declare while buying a top up. So 3 lakh, 5 lakh, 10 lakh करके deductible है.
वो आपने अगर आप डिक्लेयर कर दो तो ऊपर का जो खर्चा होगा वो कंपनी देगी. सपोज द बिल इज ऑफ 10 लाख, राइट? यू हैव टेकन ओनली टॉप अप पॉलिसी, यू डोंट हैव अ बेस प्लान. तो 5 लाख का डिडक्टेबल आपने लिया है, तो पहला 5 लाख जो रहेगा वो आप अपने जेब से दोगे, ऊपर का 5 लाख कंपनी पे करेगी. तो दैट कैन बी टेकन एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर आपने दोनों लिया है तो पहला और दूसरा भी दोनों मिलेंगे. एनीथिंग, क्वेश्चंस? ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अलग-अलग लेने पड़ते हैं कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें सब अलग अलग होते हैं बिकॉज इट कॉस्टिंग एट डिफरेंट लेवल्स. बिकॉज देखो यू कैन, देयर आर पीपल, इफ यू गो टू एनी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो बंडल करके सेल करते हैं, तो यू कैन गेट इन वन आल्सो. बट अगर आप कंपनी लेवल पे देखोगे तो कंपनी सेल्स इन इंडिविजुअल लेवल्स बिकॉज एवरीवन डजंट हैव द कैपेसिटी टू बाय इन वन गो. सर जनरली मार्केट में ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स रहते हैं आधे ईयरली और ऐसे पैकेज रहते हैं 5 साल 10 साल 15 साल. फैंटास्टिक क्वेश्चन. एक बार क्लैप करिए उनके लिए. प्लान जनरली मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के ऑप्शन में मिलता है. इफ यू बाय फॉर 1 ईयर, जनरली पीपल 1 ईयर के लिए जाते हैं, बट 2 ईयर में देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 3 ईयर में देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 12.5 और 15% डिपेंड अपॉन द कंपनी. तो यू गेट अ डिस्काउंट देयर. प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है अगर आप 3 साल, मैक्सिमम 3 इयर्स मिलता है. मतलब प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस का रिइंबर्समेंट लिया, इसको छोड़ सकते हैं. छोड़ना नहीं है. देखो अच्छा मुझे एक बताओ, चलो अब मैं अभी आपको ये सवाल पूछता हूँ. आपने you have paid around 20,000 rupees for 5 lakh, right? You have taken a claim of 1 lakh for certain disease, ठीक है? Next year you can say that it will not happen, the disease cannot will have, कोई बीमारी नहीं होगी कि आप रिन्यू नहीं करोगे. उल्टा आपको ज्यादा करना चाहिए because ऑलरेडी आपको एक बार हो चुका है, मतलब चांसेस है कि वापस कोई बीमारी हो सकती है. तो दोज पीपल हु टेक क्लेम ना, वो कंपनी छोड़ के नहीं जाते, वो लाइफ टाइम रिन्यू करते हैं. बाय द वे वो बोलेंगे मेरे को तो रिन्यू करना है बिकॉज वंस आई गो आउट, वंस आई लीव द पॉलिसी एंड पॉलिसी लैप्स, आई विल नॉट गेट द फ्रेश वन वेरी इजीली बिकॉज आई हैव टेकन अ क्लेम फॉर सर्टेन क्रिटिकल इलनेस. सपोज हार्ट अटैक आ गया था और मैंने क्लेम ले लिया और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने रिन्यू नहीं किया. नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ again there is a heart attack and I don't have any insurance, so that's not a good situation. Suppose I am going for buying a second insurance again after lapsing the policy, I have to claim it कि sir मुझे heart attack आया था, and that when you say that मुझे heart attack आया था, insurance company will say no, big no, we cannot give you insurance now. So the customers who take claim, they definitely renew, they will never lapse. Yeah. Does the premium increase once you claim? Very good question again. Fantastic. So premium is basically in health insurance, it is on slab wise. So there is a slab till 25 there is same premium. 21 basically company to company differs. 25 फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. तो 5 year के gap में there is a premium changes, right? Plus there are companies उसमें slab 10 साल का भी होता है. There is certain age like 25 to 35 में there is a company called Lombard where the premium doesn't change for 10 years. Premium remains same. ऐसा भी होता है. Slab wise premium increase होता है. Higher the age, higher the premium. Yeah. More questions? So you mentioned that the policy is for 3 years. So why You can take it for 3 years. Then 1, 2, 3 are the options. why is that only 3 years, not Basically what happens in health insurance, costing of healthcare keep on increasing. As an insurer, I cannot predict what will happen after 3 years. In life insurance, you can take a policy now and you can cover it for 15, 20, 50 years also, policy 70 years, whole life policy are available because death is a certain thing which can be, the ratio is very 1:2 lakh, 1:10,000. मतलब 10,000 में से एक आदमी मरता है. That's the ratio. But and the claim will come. You don't know whether the claim will come or not. But in health insurance,
in 3 years or 5 years a customer will take a claim. Something or other he will take a claim. Therefore, the health insurance companies never go beyond 3 years because as the hospitalization bill raises, किसी ने Mercedes ली होगी, किसी ने BMW ली होगी. Imagine your car is there. It worth around 10 lakhs. मैंने एग्जांपल अभी थोड़ा Mercedes की कीमत बहुत ज्यादा है. तो 10 लाख की कार है आपकी, 10 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया है और 5 लाख का एक्सीडेंट हुआ कार का और 5 लाख का बिल आया, कितना मिलेगा? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज होती हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडिम्निटी एंड इन दिस इनपेशेंट इज कवर्ड. प्लीज इनपेशेंट, इन का मतलब होता है हॉस्पिटल के अंदर. तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी बिल बनेगा ना वो पूरा पूरा कवर होगा अंडर इंडिम्निटी पॉलिसी. अंडरस्टूड? तो हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या बिल बन सकता है? एनीथिंग यू रिमेंबर अबाउट हॉस्पिटल बिल्स? क्या क्या रहता है हॉस्पिटल बिल में? डॉक्टर फीस, वेरी गुड. रूम रेंट, वेरी गुड. फूड बिल नहीं होता हॉस्पिटल में, फूड बिल नहीं देते वो लोग. बताओ. टेस्ट, वेरी गुड. डायग्नोस्टिक, ओके. और मेडिसिन, वेरी गुड. और कुछ रहता है? इफ डॉक्टर फीस हो गई, सर्जरी अगर कोई है तो सर्जरी की फीस, 5 चीजें इट इज कवर्ड. दिस इज कॉल्ड एज इन पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर. ठीक है, इसके अलावा कुछ कवरेज होते हैं जैसे एम्बुलेंस. एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो एम्बुलेंस कवर होगा. सपोज देयर आर सम हॉस्पिटलाइजेशन. एक अगर आप एक और चीज देखना, डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है. यू नो डे केयर? There are certain diseases which can be covered and treated within 24 hours. Example है cataract. Cataract का ऑपरेशन हार्डली इट टेक्स 40 मिनट्स. अगर आप एग्जैक्ट टाइमिंग देखोगे 2 घंटा पहले और 2 घंटा आगे लगा दो तो टोटल 5 आवर्स का होता है. बिकॉज 2 घंटा पहले के वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं, फिर वो ठीक हो ये हो जाता है, फिर ऑपरेशन के लिए रेडी होता है. तो टोटल 5 आवर्स में ऑपरेशन हो जाता है एंड यू गेट डिस्चार्ज ऑल्सो. It's a day care treatment. So it is also covered in health insurance. So there are certain बीमारियां which can be covered under day care also, because health insurance से कि 24 घंटे से अगर कम एडमिशन हो रहा है तो we will not cover under inpatient. समझ में आ रहा है? तो अगर आप 24 घंटे से ज्यादा एडमिट रहोगे तो ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट if it comes into the day care it will be covered. समझ में आ रहा है? तो डे केयर की लिस्ट होती है हर कंपनी के पास. वो डे केयर में अगर आ गया तो you will be covered. डे केयर के अलावा अगर मान लो आपको फ्रैक्चर, गाड़ी से गिर गए, ठीक है, आप क्या करते हो? गाड़ी से गिर गए तो फ्रैक्चर हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया? दवा दिया, वो पूरा प्लास्टर विस्टर लगाया, आपको घर भेज दिया. ये कवर होगा? इन पेशेंट में नहीं होगा. इसको कहते हैं आउट पेशेंट. इसको क्या कहते हैं? आउट पेशेंट क्या होता है? जहां पे आप एडमिट नहीं हो रहे, जहां पे आप एडमिट नहीं हो रहे वो आउट है. मतलब आप डिस्पेंसरी में कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पे अगर सर्जरी नहीं हो रही है, नॉर्मल सर्जरी है, विद इन 24 आवर्स आप हट गए, प्लास्टर विस्टर लगा के घर भेज दिए, जाओ नाउ टेक द मेडिसिन फॉर 4 days 5 days 10 days. दैट इज कॉल्ड एज आउट पेशेंट. तो देयर आर पॉलिसीज लाइक बीफिट. ये एग्जांपल दिया है, कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है. इट इज एन ओपीडी प्लान. व्हाट इज दैट? इससे पहले वाला क्या देखा हमने? आईपीडी, इन पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा हो रहा है. अगर आपको ओपीडी का भी कवर चाहिए, यू कैन टेक इट अंडर अ प्रोडक्ट दैट विल कवर योर नॉर्मल. जैसे आपको नॉर्मल बुखार आ गया, यू गो टू द डॉक्टर, यू पे हिम द फीस, he give you, he do the diagnosis, है ना? फिर बाद में वो अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करना है तो बोलता है जाके ब्लड टेस्ट कर लो. तो ये 3 चीजों का पैसा वहां पे आप कवर कर सकते हो अंडर ओपीडी. तो एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर वाला एग्जांपल क्या है? ओपीडी का है. बाइक से गिर गए, बुखार हो गया, जहां पे हम एडमिट नहीं हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग डिस्चार्ज, नॉट डिस्चार्ज ऑल्सो, वी आर जस्ट कमिंग फॉर वेरी पर्सनल विजिट करके डॉक्टर से घर पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपीडी. गॉट इट?
Then we come to the top up policy also. There is a market में top up policy नाम से भी चलता है. आइसक्रीम खाते हैं ना तो उस पे टॉपिंग्स होते हैं, है ना? तो वैसे ही टॉप अप भी है. मैंने बेस प्लान लिया, एक इंडेमनिटी पॉलिसी ली 5 लाख की. सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं. हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, 5 लाख का पॉलिसी लिया था उन्होंने. That was hospitalization cover, right? Inpatient. Now he can take additional policy by paying lesser amount, and that is called as a top-up policy. And he can take 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 30 lakh ऐसे करके वो बढ़ा सकता है. Top-up will be very cheaper because वो टॉपर का डेफिनेशन क्या मालूम है टॉप-अप का, कि पहला वाला आइसक्रीम खत्म होने के बाद ही टॉप-अप खाना है. अंडरस्टूड? टॉप-अप की रिक्वायरमेंट कब आएगी? जब आपका आइसक्रीम खत्म होने वाला. मतलब आइसक्रीम अगर खत्म हो गया, 5 लाख खत्म होगा तो ही आप आगे का 10 लाख यूज कर सकते हो. तो दैट इज अ टॉप अप पॉलिसी. नेक्स्ट है एक्सीडेंटल पॉलिसी. आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंट्स, राइट? कि 1 मिनट में कितने एक्सीडेंट होते हैं. बिकॉज व्हाई आई वाज टॉकिंग कि 70% पीपल सर्वाइव आफ्टर एक्सीडेंट्स. डेथ इज द अटमोस्ट. डेथ पे जो पैसा मिलना है घर वालों को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सर्वाइव कर गए, मान लो 6 महीने के लिए देयर इज अ बेड रेस्ट, हाउ विल बी योर एक्सपेंसेस टेकन केयर? दैट कैन बी टेकन केयर विद द प्रोडक्ट लाइक फैमिली शीट और एक्सीडेंटल पॉलिसी. इन दिस व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लमसम सम एश्योर्ड 50 फॉर 1 करोड़ एट योर एज. 1 करोड़ के लिए 9,000 रुपीज में कवर मिलता है. तो अगर सपोज देयर इज एन एक्सीडेंट, you will get a cover of 1 crore. If there is a death occurs due to accident, 1 crore will be given to the family. Suppose there is a partial disability, 25 lakhs will be given. There is a total disability, 50% मतलब 50 लाख दे देंगे. अगर एक उंगली भी टूट गई तो भी आपको 2.5 लाख रुपया मिलेंगे. तो मतलब everything is being covered under this policy. So this type of policy is called as accidental policy, or you can say personal protect policy, or this is accidental policy which is known for. And the best part of this is partial disability, temporary disability is covered. तो मैंने जैसे कहा कि 6 महीना there is a bed rest, his income is stopped, so there will be some weekly money which will be paid under this policy, which will help the customer to survive in that 6 months. Good, bad? Are you there? Yes. Yeah. Last is the very critical one. They cover the critical illness part. Now, suppose there is a critical illness का example दो कोई, which is the biggest critical illness today. Critical मतलब समझो chronic, जानलेवा, cancer, right? Cancer अगर किसी के family में एक को अगर होता है, you know the cost of treatment, it's too high, right? मैं example word नहीं चाहता, it's too high. But you know the surrounding cost, मतलब surrounding मतलब family की conditions क्या होती है उस family में जिसके घर में cancer है. There is a continuous requirement of one person to take care of that person who is suffering or going through the chemo process. You know that? Chemo जिसके साथ हो रहा है उसके साथ में 1% हमेशा चाहिए. दूसरा, अगर मान लो किसी के साथ केमो हो रहा है, केमो समझते हो ना, केमोथेरेपी. अगर किसी को केमो मतलब किसी को कैंसर फैमिली में अगर किसी का एग्जांपल है कोई पुट करेगा क्या होता है? Anybody have anybody in your circle you know about what is the treatment? Anybody? Cancer in not in your family or neighbor or anything? Any example? Yeah. मतलब देखो inflation is 14%. Your sum assured should increase. That is there. अगर मेरे क्लेम ज्यादा आने लगेंगे तो मेरी कॉस्टिंग जो रहेगी प्रोडक्ट की वो इम्पैक्ट होगी. And therefore, health insurance premium cannot be sold more than 3 years. There are companies which are selling only 1 year also. ठीक है? Because it all pricing has been done. आपको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पता है क्या? अच्छा मैं एक कर दूं इनके साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं. जस्ट 5 मिनट्स एडिशनल हो गए. तो एक बार क्या हुआ ना, मैं ऐसे स्टोरी एक सुना देता हूँ बेटर हो. तो एक बार क्या हुआ, एक इंश्योरेंस एजेंट
वही फैमिली के पास गया, हस्बैंड वाइफ और एक छोटी लड़की किड, उनके घर पे चला गया, ठीक है। और इंश्योरेंस एजेंट मस्त एक बैग लेकर गया था एंड बेल बजाया उसने। जैसे ही बेल बजाया तो बच्चे कैसे होते हैं, क्यूरियस, मैं जाके ओपन कर, तो शी रन एंड ओपन द डोर एंड ऐसा देख रही है, हु आर यू? तो वो जो इंश्योरेंस एजेंट थे उन्होंने बोला आई एम इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस? मम्मी ही इज इंश्योरेंस एजेंट। तो डैडी अंदर से आया, बोले कि कम कम कर से। तो daughter was so curious, she had never heard about insurance. Now on curiosity she said, Papa, can uncle tell me what is insurance? So this gentleman, the insurance man, he take one paper, right? बोर्ड होता तो मैं ड्रॉ करता, बट अभी आप इमेजिन करना। He drawed one big circle here and say, सर्कल बनाया और बोला कि ये ओशन ऑफ लाइफ है। क्या है? ठीक है। नाउ एवरी फैमिली, दिस इज ओशन ऑफ लाइफ एंड एवरी फैमिली हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम हियर एंड दे हैव टू फ्लो दिस एंटायर ओशन एंड एंड इट हियर, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू फैमिलीज विच दे टेक देयर ओन बोट, स्मॉल बोट, and they start this journey, right? And somewhere in the mid of the ocean, you know, mid of the ocean में क्या होता है? बड़े बड़े shark होते हैं, right? And the shark comes and eat one of the parrots. ठीक है? Now in that small boat, who is remaining? One parent and that small kid. And you know, the journey of life cannot be carried individually, it's very tough, right? तो husband wife होंगे तो साथ में वो जर्नी अच्छी जा सकती है। तो that individual parent face lot of difficulty to cross this ocean of life, right? This is situation 1. Now let's see the situation 2. Now let's see the situation 2. There are so many parents, they buy a ticket of a bigger boat. They buy a ticket of a bigger boat. बड़ा ship में they buy a ticket and they start their journey. Here also the shark comes and eat one of the parents. But there are so many parents in that boat to help them reach their life journey. So situation here is, insurance is that ticket of that bigger boat. Understood? So you know the child reaction after it. You know the reaction of that child after it. What will be the reaction? Demanding था. She was very demanding. Daddy, I want this ticket boat. ये बोट का टिकट मुझे चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है? Even that kid understood what is insurance. So health insurance is one of it. Life insurance is one of it. Understand? That's it. Thank you.